Hey everyone, I am Aarti Sani and welcome to my channel. So if you are going to put up an exhibition for the first time, then you should watch this video till the end. So if this is your first time, then you might be not aware about few things. So in this video, we are going to cover every single thing about exhibition, like which type of customer would visit, their paying capacity, their interest, and how to convince the customer, how to select the product, what things you should not forget, what things you should not do, and there are a lot more things we are going to cover in this video. So talk to the organizer first, like what different stalls they have and how much they are charging for that stall, because they have a different stall at different rate. So the bigger the stall, the higher you have to pay. See, sometimes the organizer provides a few other facilities or amenities to their exhibitors like free water, canopy, food, tea, etc. So you just have to check with the organizer. Location matters a lot. People don't like to visit such exhibitions which is far away from the city or which is in very interior of the city. Like कुछ ऐसे बहुत crowded place होते हैं जहाँ पे parking की space नहीं है, जहाँ का जो जेंट्री है वो डिसेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ का फुटफॉल थोड़ा सा कम होगा. एंड सपोज करिए आपकी जो एग्जीबिशन है किसी पॉश एरिया में है या किसी डिसेंट लोकेशन पे है, जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ की जो जेंट्री होगी वो भी आपको वैसी ही मिलेगी. बेस्ड ऑन दैट आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा जेंट्री आपकी जितनी डिसेंट एंड हायर क्लास से आएगी, डेफिनेटली उनकी जो पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा ही होगी. सर एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजर विल टेल यू कि वहाँ का जो फुटफॉल होगा वो कितना होगा एंड किस टाइप के क्लाइंट्स विजिट करेंगे, बिकॉज दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस देयर कि वो क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे एग्जीबिशंस लगा चुके होते हैं, बिकॉज दे नो कि उन्होंने मार्केटिंग कैसे करी है, कितनी करी है. सो इन सब चीज़ों के बेस पे वो लोग आपको बता सकते हैं कि हम जो इतना फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इस तरह के क्लाइंट्स आएंगे. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड योर प्रोडक्ट लाइन कि किस तरह के प्रोडक्ट आपको रखने हैं एंड क्या प्राइस आपको रखना है. यू शुड ऑलवेज आस्क द ऑर्गेनाइजर अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. वो इस इवेंट को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट वो लोग करेंगे उतना ज़्यादा फुटफॉल होगा. एंड आप डेफिनेटली उनसे ये भी पूछ सकते हो, अगर उन्होंने लास्ट ईयर भी कभी एग्जीबिशन लगाई या लास्ट टाइम आपकी सिटी में एग्जीबिशन लगाई गई तो कितना फुटफॉल हुआ था, तो बेस्ड ऑन दैट आप एक एस्टिमेट कर सकते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट कितने वहाँ पे रखने चाहिए. I have told you about few basic things about the exhibitions which will help in determine the price and product. So let's move on to the next topic. Don't ever give a very annoying or serious face to your customer. This way you are distracting your customer and they will visit to some other stall. So there should always be a smile on your face like this. This way you're giving them a comfort zone, and once they are in comfort zone, then definitely they will listen you, they will understand your product, and there might be a very high chances that they will buy your product at the end. And ट्रस्ट मी, ये एक बार के लिए नहीं है कि आज आपकी एग्जीबिशन से आपके स्टॉल से वो लोग आपको प्रोडक्ट लेके चले गए. वो हो सकते हैं बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपको फ्यूचर लीड भी देते हैं. सो स्माइल मैटर्स अ लॉट. थिंक एक स्माइल कितना काम कर सकती है. So once the customer is ready to listen you, that means they are trusting you, and don't ever break their trust. And you always have to be very honest with your product, whatever product you are offering to them. So you should be very honest about it and don't do any false or fake commitment. एंड उसके बाद आप अपनी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है आपकी, या यू जस्ट टेल अबाउट योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट लाइन, वट एवर यू हैव. एंड प्लीज़ उनको रामायण कभी मत सुनाइए वहाँ पे, बिकॉज ऑनेस्टली उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक स्टॉल पे जाके वो पूरी की पूरी स्टोरी सुने, पूरे रामायण सुने. सो यू हैव टू बी वेरी very short and specific about your product and your brand. So when we are talking about products, so let me take an example. So suppose if you want to keep a chocolate stall in an exhibition, then what type of chocolate you should keep? So see, people are getting experimental these days, and they want some creativity in chocolate as well as in packaging also.
So you can play with packaging, but you can't play more with chocolate, because हर कस्टमर का डिफरेंट टेस्ट होता है. सो सपोज आप उनको मोरिंगा या माचा फ्लेवर नहीं दे सकते हो, बिकॉज वो हर किसी की पसंद नहीं होगी. सो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखने होंगे जो यूजुअली हर कोई पसंद कर ले, हर एज ग्रुप का पसंद कर ले. आई विल रिकमेंड यू टू कीप अ लिमिटेड वेराइटीज देयर, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा वेराइटी रख दोगे कि आपने 15-20 वेराइटी रख दी, तो उससे ये होगा कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन सी चॉकलेट ले, अल्टीमेटली वो आपका स्टॉल छोड़ के चला जाएगा. तो जो भी आपकी बेस्ट चॉकलेट है या जो हर कोई पसंद कर ले, ऐसी कुछ वैरायटीज आप रखिए, वो ज़्यादा बेटर है. द प्राइस शुड स्टार्ट फ्रॉम लो टू हाई. द रीज़न इज बिकॉज हर तरह के कस्टमर्स का वॉक इन होता है एग्जीबिशन में, एंड कोई मिडिल क्लास है तो कोई एलीट क्लास है. सो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपकी जो चॉकलेट है वो मैक्सिमम लोग टेस्ट कर पाए. सो हो सकता है अगर आज वो आपकी चॉकलेट नहीं भी खरीद रहे हैं, या सपोज करिए अगर बहुत छोटा सा उन्होंने एक पैकेट लेके गए, तो हो सकता है आगे जाके वो आपको बड़े ऑर्डर भी दे सकते हैं. तो इसलिए हमेशा प्राइस ऐसे रखिए कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए. If you are planning to put up a stall, so always keep your visiting card and your brochure और pamphlet ready, because हो सकता है कस्टमर आपके स्टॉल पे जब विजिट कर रहे हैं तो आपसे कुछ परचेज ना करे, वो ऐसे ही देख के चला जाए. सो आप उनको जैसे ही आपके स्टॉल पे भी विजिट करते हैं तो आप उनको अपना पैम्पलेट एंड विजिटिंग कार्ड आप उनको दे सकते हो. सो उससे ये होगा कि वो एट द मोमेंट परचेज ना करें, बट हो सकता है फ्यूचर में जाके वो आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने कस्टमर से, तो आप उन तक सही कम्युनिकेट कर पाएँ, बिकॉज उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होना जरूरी है. बिकॉज हर तरह के अगेन कस्टमर्स वॉकिंग करते हैं एंड सबका नॉलेज अलग अलग होता है. सो जो भी उनके क्वेश्चंस रहते हैं आप उनको सही तरह से आंसर कर पाएँ. If the customer is tasting your product at the same moment, then do not forget to take their feedback, बिकॉज इस फीडबैक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपने जो अपने प्रोडक्ट की जो रेंज रखी थी उसमें आप और क्या इम्प्रूव कर सकते हो, और क्या नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो. सो आपको कस्टमर का प्रेफरेंस एंड टेस्ट आपको इससे पता चलेगा. ऑलवेज कीप अ डायरी एंड लूज मनी विथ यू. सो आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आप पर डे सेल कर रहे हैं, तो वो बेटर है कि आप उसको एक डायरी में मेंटेन करिए. वो उससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपका कुछ प्रोडक्ट मिस तो नहीं हुआ है, या पर डे आपने कितना सेल करा है, तो आप कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. एंड सेकेंडली, लूज मनी रखने का ये फ़ायदा होता है बिकॉज आज के टाइम हर कोई डिजिटल पेमेंट नहीं करता है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम चेंज रखें, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कभी चेंज नहीं हुआ मेरे पास, तो उसकी वजह से कस्टमर ने प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया कि चेंज तो मेरे पास भी नहीं है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम हमेशा चेंज रखें अपने पास. एंड डिजिटल पेमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन भी होना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट में पेटीएम, फ़ोनपे या जो भी कस्टमर जिससे भी पेमेंट करना चाहे, आपके पास वो ऑप्शन होना चाहिए. It is very important that you should have a complete knowledge about your product, बिकॉज कस्टमर हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो आपके प्रोडक्ट को लेके. सो आपका जो नॉलेज होना चाहिए उससे हमेशा कस्टमर से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप उसको सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को लेके और ज़्यादा इम्प्रेस होगा. I have shared few important things with you which I have observed during the exhibition. I hope it will help you in making the right strategy for your exhibition. I hope you have enjoyed and learned from this video. So if you are going to put up an stall, so best wishes from RT Chocos, and do not forget to share this video and subscribe to our channel. And if you have anything to ask, then you can ask me in the comment section below. I'll be glad to answer them. Thanks for watching RT Chocos.